दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो तैयारियां चल रही हैं उसमें बहुत सारे विषय के विशेषज्ञों को हमने बुलाया था। आज हमारे साथ हैं इसी तरह विषय के विशेषज्ञ सीपी तिवारी सर, चंद्र प्रकाश तिवारी सर, जो कि केवी केवी मांगलदोई असम में पीजीटी इंग्लिश हैं। और सर आज आपको टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश दोनों को लेकर गाइड करेंगे, क्योंकि सर नवोदय में टीजीटी इंग्लिश भी रह चुके हैं। इंग्लिश। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि सर आप अपनी शैक्षणिक यात्रा, आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने कहाँ से पाई और आपने अपना टीचिंग करियर कब शुरू किया, उसके बारे में अपनी जुबानी अपनी कहानी बताइए। बहुत बहुत स्वागत है सर। Thank you, Vivek sir. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to share my experiences and to share my experiences about life, my academic career, my teaching experiences, and whatsoever I know and whatsoever I have accumulated over the past few years as a teacher, so that it could be reflected and it could be given to others. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि जीवन के दान का प्रतिदान होता है, तो ये एक उस तरीके की बात है। और as far as myself is concerned, I am Chandra Prakash Tiwari. I hail from Bihar, a very remote village of Bihar, that is in Ara district, that is also known as Bhojpur. And I did my schooling, my matriculation from Bihar itself. Then I shifted to Banaras for my intermediate, and then I joined BHU, one of the most prominent institutions of India, and I did my graduation, post graduation, then Bachelor of Education, and I also get enrolled in PhD for a brief stint that was for 18 months. Unfortunately, I could not continue that because of it was very difficult to grapple with these two things, means having a full-time job and doing PhD from Banaras University. It was very difficult to do, so I had to left it in the lurch. But I am here, and I find myself that I am very fortunate being a PGT in such a apex institute of schooling in India, that is Kendriya Vidyalaya. So this has been my journey, and there is one thing which is very significant in my life, that I did my schooling from a thorough Hindi medium school. I did my intermediate and graduation. That has also been a thorough Hindi medium, and then I had to choose a subject as honors, and I had no choice, since I had two subjects, geography and English, in my optional. And since I am quite poor in graphics and designing and sketches, that's why I did not choose geography, since geography has two papers of practicals in honors. So I chose English, and from there my real journey began, and my real, you can say, voice began with English. And here I am. Then I did everything. So first of all, that because many of the students or many of the aspirants who are going to face this interview in Kendriya Vidyalaya, they find it difficult to converse in English, and they find it quite difficult to communicate in English. So take it from me that it is not that much difficult. Even if your background, even if you come from a Hindi belt or Hindi medium background, still you can do it. It takes 6 to 12 months, and it's easy. Fine. And Sir, when did you join KVS and what I were you did doing join in before KVS? I did join in 2017, Okay. in October 2017. Hmm. It's been 6 years, almost 6 years. And before that, you have experience of Navodaya. Yes, yes. Actually, I appeared in 3 interviews, two Okay. for Kendriya Vidyalaya Hmm. and one for Navodaya PGT, and I qualified for all three. But Oh, I joined Navodaya, and I only did 40 days service in Navodaya. And in the meantime, I got selected in Kendriya Vidyalaya. So I shifted my job. So this okay. has been the journey. Where was your posting in Navodaya? I was posted in the hinterland of Mizoram. That is the adjacent district. That is the international boundary of India. That is in Sarchip district, the most literate district of India, and that shares boundary with Myanmar. I was posted over there. That दोस्तों was a very panoramic, very scenic beauty. That was a very lush green vegetation.
full of verdure. I was in the lap of nature, so I enjoyed over there as well. ओके। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक टीजीटी एसएसटी का इंटरव्यू लिया था, जो अभी प्रिंसिपल बने यूपी में। वो नवोदय में थे, मिजोरम में, और सर के साथ, सर जहाँ पे गए थे वहीं पे थे। शशांक सर का मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरा परिचय है उनसे। हाँ हाँ। तो फिर आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन में कब ज्वाइनिंग की, और आपके इंटरव्यू में क्या प्रश्न थे सर, उन पर जब आप फोकस करेंगे। देखिए, हम लोग इसको बाइलिंगुअल भी रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बहुत सारे बिल्कुल सर। बच्चे। हाँ, तो मैं हिंदी बोल पहली बात लूंगा, तो आप मैं हिंदी बोल लूंगा, आप इंग्लिश बोल लेना। बिल्कुल। अब मैं तो तो ये नहीं कहूंगा कि आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना लेना, मैं हिंदी बोल लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, you need to understand it that there is no set weight pattern of interview. ओके। Interview is a very exotic kind of thing. It's a very different kind of thing, and it's very difficult to crack interview since there is no set weight pattern, there is no curriculum, there is no syllabus. So there is no particular and there is no precise key to open it, to crack it. So first of all, you need to have confidence, and you need to have that much of courage to face different kind of questions, and it can come from random areas, it can come from any direction. So the first thing which I would like to share with all the aspirants, that you need to be ready for each and everything, because your written has already been done, your knowledge has already been tested. So you do not have to prove your knowledge, that you deserve it. तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस चीज का फिक्र ही नहीं करना है कि आपको सारे प्रश्न आने चाहिए, और एक प्रश्न अगर आपका गलत होता है तो उससे आपके इंटरव्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अक्सर क्या करता है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। वो हमें नहीं करना है। हमें इंटरव्यू के सारे प्रश्न नहीं आ सकते हैं, और उससे हमारा इंटरव्यू निर्धारित नहीं होता है। योर रिजल्ट इज नॉट डिटर्मिन्ड बाई सिंगल क्वेश्चन और कपल ऑफ क्वेश्चंस इफ यू मिस इट। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमें इंटरव्यू में ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू अक्सर डिपेंड करता है पैनल पे। जिस तरह का पैनल होगा उस तरह का इंटरव्यू होगा। द काइंड ऑफ पैनल, द काइंड ऑफ इंटरव्यू, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो अगर इंटरव्यू में कोई लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड का आदमी है, अगर इंटरव्यू में कोई एकदम थरा लिटरेरी बैकग्राउंड से आता है, अगर इंटरव्यू में अगर कोई एक आदमी है जो डोमिनेंट है, वो एजुकेशन के बैकग्राउंड से आता है, जैसे मान लीजिए वो बीएड कॉलेज से है या किसी ऐसी जगह से, तो फिर उस तरह से क्वेश्चंस निकलते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें इंटरव्यू को अपने जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसमें लेके आना होता है। कैसे लाना होता है, कैसे लाना होता है? लाना ये होता है कि देखिए, यू नीड टू हैव सर्टेन, जैसे मैंने पहले कहा, इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू दैट देयर इज नो सेट वेट पैटर्न ऑफ इंटरव्यू, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ सेट वेट पैटर्न। ओके। नहीं भी होता है और होता भी है, क्योंकि देयर आर सर्टेन स्टॉक क्वेश्चंस व्हिच आर रिपीटेडली आस्क्ड, व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन इंटरव्यूज, एंड हियर स्टार्ट्स योर अटेम्प्ट टू ब्रिंग इट इन योर स्ट्रॉन्ग होल्ड। आपको कुछ लूज एंड्स छोड़ने होते हैं, जहां से इंटरव्यूअर वही क्वेश्चन पूछे जो आप चाहते हैं। आपको अपने आप अपने में कर सकते हैं। जैसे सर, आप अपना एग्जाम्पल बताइए कि आपके इंटरव्यू में क्या प्रश्न थे, और आपने कैसे उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश की और लाए। पहले तो आप क्वेश्चंस डिस्कस कर लीजिए सर। पूछा गया, मतलब जनरली दे आस्क टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, सो यू हैव टू लूज सर्टेन लूज एंड्स इन दैट इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने बोला कि आई हैव फ्रॉम अ वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, मैंने ऐसे कुछ बोला तो तुरंत आपसे बीएचयू के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। आप पूछेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग और व्हाट इज द सेलिएंट फीचर ऑफ बीएचयू, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स। अब यहीं पे आपको बात आती है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बोलना है, यहीं पे देखी जाएगी कि आप 2 से 4 लाइन में वो क्या बात बताते हैं। तो जैसे मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या बीएचयू में खासियत है, एंड हाउ बीएचयू स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया या द वर्ल्ड, तो मैंने उनको उत्तर दिया कि यहाँ की है यह पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। सर तो एक मिनट में इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, मुझे याद आ गया कि मुझसे भी यही प्रश्न किया गया था नवोदय में। तो मैंने जवाब दिया था कि प्रतीचि प्राची का है मेल सुंदर। मैंने यही बोला था, मैंने दोनों कहा था, मॉडर्नाइजेशन विद ट्रेडिशन। हाँ, तो ये मैं यही कहने को सोच रहा था कि आपके पास एक मास्टर आंसर होना चाहिए
जिसमें बहुत सारी चीजों का समावेश होना चाहिए कि आप हाउ टू पोर ओशन इनटू अ फीचर, यू नीड टू नो दिस आर्ट बिकॉज इंटरव्यू टेक्स ओनली 5 to 10 minutes and hardly 20 minutes. So you have to showcase and you have to exhibit all the talents, all the acumens, all the experiences, all the skills which are pertinent and which are required for a teacher, be it communication, be it knowledge, be it your tests, be it your aptitude, be your communication skills. तो आप उस इंट्रोडक्शन में या किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते वक्त इन सारी चीजों को आप दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए थोड़ा आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपके और क्वेश्चंस क्या थे, लिटरेचर पॉइंट से क्या थे, और डेमो में आपने लिटरेचर में कुछ स्टॉक क्वेश्चंस होते हैं कि आपसे वो फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, तो फिगर ऑफ स्पीच की आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे उसके एग्जांपल्स अपने पास रखिए। ओके, फिगर ऑफ स्पीच से जनरली क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे ही जाते हैं। अगर आप पीजीटी के लिए हैं, टीजीटी के लिए हैं, तो ये दोनों में स्टॉक क्वेश्चंस होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज अ मस्ट आस्क टॉपिक और क्वेश्चन। दूसरा हाँ, दूसरा जैसे होता है कि इफ यू आर, देखिए, इफ यू आर गोइंग फॉर टीजीटी देन ग्रामर इज अ मस्ट सेक्शन, मस्ट पोर्शन. It is a mandatory portion and questions will be there from grammar side. So I suggest to all those aspirants who are going to appear that you have to prepare at least definition of each and every parts of his speech and all the salient topics of grammar with certain examples so that you could introduce it and define it in a couple of minutes. ये आपको उसमें डिटेल में नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब पूछ लिया जाएगा आपसे, इंट्रांजिटिव वर्ब पूछ लिया जाएगा, वॉइस क्या है, तो हर एक चीज का आपको छोटे छोटे 4-4, 5-5 लाइन का डिफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स, और वहां पे कुछ ट्रिकी अगर क्वेश्चन है जहां से दूसरा क्वेश्चन उठता है, उसकी आपको एक तैयारी होनी चाहिए. When you prepare something, when any question is asked, so there is a possibility that certain counter questions will be asked, so you need to prepare in that way. तो फिगर ऑफ स्पीच हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन, और लिटरेचर से ग्रामर तो हो गया, ग्रामर देख लिया। हाँ, ग्रामर से तो ये सब कहते ही। उसके बाद देखिए उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपने जो सिलेबस में पढ़ा है, अक्सर वो पूछते हैं कि आपका मेजर क्या है, तो इंडियन लिटरेचर हो गया, अमेरिकन लिटरेचर हो गया, देन फेमिनिस्ट लिटरेचर हो गया, तो इस तरह के लिटरेचर के कई पोर्शंस होते हैं। तो जनरली आपने जो सिलेबस में पढ़ा है अपने यूजी में, अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो यूजी में जो आपके पेपर्स हैं और पीजी में जो आपके पेपर्स हैं, सो आई सजेस्ट ईच एंड एवरी एस्पिरेंट टू थंब थ्रू दैट, at least go through all the papers which you have persuaded or which were in your curriculum or syllabus in your UG and PG. So at least you need to get acquainted with all the papers which were there, at least all the major writers. अब जैसे अगर वो बोलेंगे कि मैंने आपसे वो पूछ भी सकते हैं कि आपका फेमस जॉनर क्या है, आपके फेवरेट राइटर्स कौन से हैं, तो मान लीजिए जैसे आपने ऐसे कैजुअली आंसर दे दिया कि टेनिसन मेरे फेवरेट राइटर हैं, तो फिर पूछ देंगे कि टेनिसन कुछ लाइन सुनाइए। यही दिक्कत आती है, यू कैन नॉट बी कैजुअल, यू हैव टू आंसर विद ऑटमोस्ट कॉन्फिडेंस दैट देयर मे बी काउंटर क्वेश्चंस एंड यू हैव टू बी रेडी। तो कुछ आपको पोएट्री याद होनी चाहिए अगर आप ऐसा आंसर देते हैं, किसकी पोएट्री अच्छी लगती है, फिर क्वेश्चन होगा क्यों अच्छी लगती है। सो देयर कैन बी क्वेश्चंस लाइक दिस, तो इसकी तैयारी, लिंग्विस्टिक्स से भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर वो चूंकि हम इंडिया के हैं तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस बिल्कुल होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फिर डिपेंड करेगा, जैसे मान लीजिए कोलकाता में इंटरव्यू है, उस पर भी डिपेंड करेगा वहां पे, बिकॉज कोलकाता एंड बंगाल इज अ वेरी dominant place for English literature, and they are having an elevated position, somehow an upper hand in English. So they assume it that English is their second language or English is their own. So they may ask certain difficult questions. तो वो डिपेंड करेगा, मुंबई में इंटरव्यू होगा अलग तरीके से होगा, बीएचयू में होगा तो उसमें प्रेमचंद भी पूछे जा सकते हैं आपसे, because I strongly believe that there is no English, there are Englishes. There is not an English, there are Englishes. Achha. So there may be question because the Hindi literature is also taught in English literature in the form of translation. Even Sanskrit literature is also taught in different university in form of translations. So there may be questions from that segment as well. So questions can be from anywhere. तो और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर कुछ
हाँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो मेजर पोर्शन है। तो उसमें हमें जैसे जैकोबियन एज हो गया, एलिजाबेथन एज हो गया, विक्टोरियन एज हो विक्टोरियन गया, एज। मॉडर्न एज हो गया, तो ये सब के हमें सेलिएंट फीचर्स पता होने चाहिए, बड़े राइटर्स पता होने चाहिए, और जो ड्रामा है बड़े बड़े जो सिलेबस में पढ़ाए ही पढ़ाए जाते हैं, तो उसके बारे में एटलीस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकें। इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। शेक्सपियर के बारे में आप भूल गए। हाँ बिल्कुल, शेक्सपियर तो होंगे ही होंगे। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, सेली, बायरन, टेनिसन, देन चार्ल्स डिकेंस, ये सब लोग होंगे, ऑस्कर वाइल्ड, जो मेजर राइटर्स हैं उनके बारे में तो आपको कुछ तो पता होना चाहिए कि आप बता सकें। कुछ मतलब फेमस पॉइंट आपको पता होने चाहिए। उनके उनके वर्क क्या रहे, उनका बायोग्राफी क्या रहा, और ये सब चीजें पता बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल पूछा उनका जा सकता जॉनरा क्या रहा, कौन सा जॉनरा में लिखते है। हाँ, थे वो। कौन सा, जैसे वो पूछ सकते हैं कि जैसे आपसे अगर वो आपने बोला कि माय फेवरेट राइटर इज शेक्सपियर, हम्म। or Shakespeare, if there is a paper where Shakespeare is taught, so they may ask that how many tragedies Shakespeare have written. हम्म। अब फिर उसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं कि why Hamlet is considered the most widely read, or why Hamlet is considered as the magnum opus of Shakespeare. What are the reasons? इस एक तरह क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन जैसे टू बी और टू नॉट टू बी वाला जो है वो किस हाँ लिटरेचर में है, कौन से नॉवेल बिल्कुल में। पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। To हाँ। be or not to be Not- is precisely, or it is the quintessential statement of existential crisis, which is found in Shakespeare. फिर यहाँ से अस्तित्ववाद, हाँ, एग्जिस्टेंशियलिज्म पर भी अस्तित्ववाद क्वेश्चन आ शुरू हो जाएगा, जाएगा फिर अस्तित्ववाद अब। पर भी। हाँ, फिर वहां से अब वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में चले जाएंगे, लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड में चले जाएंगे, क्योंकि ये हम्म। बेसिकली 20th सेंचुरी का जॉनर है। हाँ। Theater of absurd, literature of absurd is basically part of 20th century literature in the post World War, when two post World War happened and all the grand narratives had fallen, torn apart, the entire world had fallen, then this came, but there is traces of existentialism in Shakespearean time as well. तो इस तरह से चीजें पोस्ट पता हो। मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म के का लिटरेचर पर क्या, इंग्लिश लिटरेचर पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसा कुछ। बिल्कुल पूछा जा सकता है। जैसे कॉलोनियलिज्म का भी तो पूछा जा सकता है ना, क्योंकि भारत हाँ। में अगर इंग्लिश आती है तो उसमें हम्म। सबसे बड़ा योगदान कॉलोनियलिज्म का है। तो अच्छा। कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल, फिर अंग्रेज चले गए फिर भी इंग्लिश हमारे यहाँ रह गई, ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म हो गया। हम्म। तो ये सब क्वेश्चंस तो वहां होंगे ही होंगे। फिर एंग्लो इंडियन लिटरेचर है, वो भी क्वेश्चन होंगे, हम्म। क्योंकि जब अंग्रेज थे तो वो लिखते थे, लेकिन हमने भी इंग्लिश में लिखना शुरू किया, जिसको हम बोलते हैं एम्पायर राइट्स बैक। हम्म। उसमें भी बहुत बड़े बड़े राइटर हैं, जैसे बुकर प्राइज विनर से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे राइटर जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है, और वो हम्म। दुनिया में मतलब उनका एक स्वे है, एक उनका इन्फ्लुएंस है। हम्म। नोबेल लॉरिएट तो एक ही हुए इंग्लिश में, लेकिन बुकर में बहुत सारे लोग हैं, उनसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। कौन कौन से बुकर यहाँ पे प्राइज विनर साहित्य रहे हैं। अकादमी भी बहुत लोग जीते हैं, उनसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वो सारे वर्क जिन्होंने बड़े पुरस्कार जीते हैं, बी इट ज्ञानपीठ, बी इट साहित्य अकादमी, बी इट बुकर, बी इट नोबेल, so all these questions can be there, all these writers can be there. तो सर आप ये बताइए, जैसे आपको, आप अवेयर होंगे कि इस बार डेमो का अलग नंबर है और इंटरव्यू का अलग नंबर है, हाँ तो क्या पढ़ाना ज्यादा उचित है, पोएट्री और प्रोज और ग्रामर। नहीं, देखिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ पोइट्री पढ़ाना, हम्म। क्योंकि पोइट्री एक ऐसा टॉपिक है ना, पोइट्री एक कोडिंग होता है। हम्म। तो आपको इंटरव्यू में 4 से 5 मिनट का मिलता है, यू आर गिवन अ वेरी शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, and you are also given a very short time to showcase all the skills. So एंड टू क्रिएट poetry, इम्पैक्ट अपॉन द इंटरव्यू पैनल। हाँ, poetry gives you ample scope to showcase each and everything which is needed in a teacher, which is always expected from a teacher side. So poetry में चूंकि इंग्लिश है तो आप अपना vocab दिखा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल दिखा सकते हैं, और लिटरेचर के टीचर में एक एस्थेटिक सेंस होना चाहिए। You need to have aesthetic sense, you need to have hypersensitivity, you need to be as sensitive as a barometer to every subtle change in the ambience. So while teaching poetry you can show that sensitive part of your side, sensitive part of your being. Then you can easily relate poetry with the contemporary events, because poetry is a permanent news, it is an eternal news, and it is a eternal literature. So each and every poetry can be linked with the contemporary events. ये 3 चीज कर सकते हैं। चौथा क्या कर सकते हैं, पोएट्री में आप फिगर ऑफ स्पीच वगैरह बहुत अच्छे से बचा सकते हैं, और हर एक पोएट्री में ग्रामर भी जरूर होता है।
तो थोड़ा ग्रामर की भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो एक पोएट्री की बात करते समय आप सब कुछ की बात कर सकते हैं। और जब पोएट बात करता है तो उसमें अपने आप सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन भी आ सकते हैं जिसके बारे में वो पोएट्री लिखी गई है। So each and every poem has a very definite and certain background, and that can also be broached, that can also be foregrounded while teaching the poetry. So it gives you ample opportunity to incorporate each and every skill very easily, effortlessly. लेकिन अगर किसी को सहूलियत नहीं है, क्योंकि साथ ही साथ पोएट्री एक खतरनाक चीज भी है, अगर आप उसमें दक्ष नहीं है फिर वो फंसा भी देगी। तो वो जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको ये ध्यान रखना कि अगर वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने जाते हैं, एलिटरेशन आपने बोला, तो आपसे पैनल में क्वेश्चन हो सकते हैं कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एलिटरेशन, व्हाट आर दोज टू पार्ट्स। तो आपको एजोनेंस और कॉन्जोनेंस भी पता होना चाहिए। तो उसमें काउंटर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो वो आपकी थरा तैयारी होनी चाहिए। मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि या तो आप 11-12 की बुक से कोई पोएम उठा ले जो अच्छी हो और जिसमें स्कोप ज्यादा हो, और नहीं तो कोई अगर आपका फेवरेट राइटर्स है तो आप दो चीज तैयार करें, क्योंकि ज्यादातर वो 11-12 से देते हैं आपको क्वेश्चंस, और नहीं तो आपको वो क्वेश्चंस देते हैं कि अगर आप जो भी तैयार करके आए हैं वो पढ़ाइए। तो दो तैयार करके जाइए, अगर वो कोर्स से पढ़ाने को बोलते हैं तो वो पढ़ाइए, और नहीं तो फिर अपने मन से पढ़ाइए। तो दो लेसन प्लान तैयार करके ले जाइए। सर अब देखिए, जैसे आपसे जो अभी तक की वार्ता हुई उसमें आपने बताया कि आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लें, ग्रामर पढ़ लें, ठीक है, और आपका जो यूजी लेवल का पेपर्स हैं इंग्लिश के उसको अच्छे से पढ़ लें, पीजी लेवल के जो पेपर्स हैं उनको मैं अच्छे से ये नहीं कर रहा हूँ कि उसको थरा नहीं पढ़ना है, आपको सारे गो पेपर्स थ्रू पता कर होने चाहिए। देखिए मैं ये क्यों क्लू दिया, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मींस दे आर हाईली कंफ्यूज्ड एंड परप्लेक्स दैट what to prepare for a study, because they are having a very less शॉर्ट time टाइम। and they are inching towards the interview, so they are quite perplexed how to prepare for it. When you prepare for syllabus, each and every university design the syllabus in such a way that it covers all the major writers, all the major genres, and all the major events, all the major terms, terminology and situation and events. तो अगर आप कोई सिलेबस कवर करते हैं इस तरीके से तो आपका सब कुछ कवर हो जाता है थोड़ा थोड़ा। मतलब गो थ्रू कर लेना है आपको, अपने पेपर को देख लेना है एक बार कि क्या क्या आपके सिलेबस में था, और उसको थोड़ा बहुत देख लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमारी जो अभी तक की बात हुई। इसके अलावा आप और क्या, हाँ एक चीज और छूट रही कि बुकर प्राइज से रिलेटेड कि कौन कौन जीता है और क्या है उसमें, क्यों जीता है, उसमें क्या था। क्या इसमें इंग्लिश लिटरेचर के टीचर के लिए क्या उसको फिलॉसफी का भी नॉलेज होना चाहिए? देखिए लिटरेचर, आई ऑलवेज बिलीव एंड स्ट्रांगली बिलीव एंड इट इज माय कन्विक्शन दैट लिटरेचर इज मेल्टिंग पॉट ऑफ नॉलेज। लिटरेचर इज हिस्ट्री, लिटरेचर इज फैक्ट, लिटरेचर इज फिक्शन, literature is sociology because the literature deals with society. Literature is anthropology because it deals with human being. Literature is psychology because the modern day literature, the crisis of modern men is not the outer crisis, not the external crisis, but it is the internal crisis. So it becomes psychology as well. And when you cover a syllabus, you go through all the criticism given by the major critics of the world, and that effortlessly and that very naturally occupies and consists of each and every dominant genres of history, geography, sociology, everything. तो उसमें सब कुछ अपने आप आ जाता है, philosophy as well. आपने अभी तक जो बातें बताई उसमें आपने जैसे अपने इंटरव्यू का भी कुछ बातें शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं कि आपके इंटरव्यू में क्या पूछा गया। तो आपने एक पूछा कि आपकी यूनिवर्सिटी से बताया गया, दूसरे तीसरे सवाल बताइए क्या क्या पूछा गया। हाँ, मुझसे पूछा गया था कि अपने फेवरेट राइटर के बारे में बताइए। तो जैसे मैंने फेवरेट राइटर के बारे में बताया तो फिर उन्होंने मुझसे उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। तो क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एक जनरल क्या होता है कि हॉबीज आपसे पूछी जाएगी, तो जैसे ही आप हॉबीज में बताएंगे तो लिटरेचर के लोगों को ज्यादातर ये कोशिश करनी चाहिए कि आप पढ़ने के बारे में बताएं कि आई एम एन एविड रीडर एंड आई वांट टू रीड डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। तो फिर वो आपसे बुक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कुछ बुक्स आप जरूर ध्यान में रखें जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है और जिसके बारे में आप बात कर सकें। एक ये स्टॉक क्वेश्चन होता है। फिर वो जैसे अगर आपने बोला कि आप कंपोज वगैरह करते हैं तो आपकी अपनी लाइंस भी वो सुन सकते हैं। तो अगर आप सच में कंपोज करते हैं, पोएट्री वगैरह लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, उसके बारे में भी वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और क्या पूछा गया सर आपसे?
मुझसे पूछा गया था कि जैसे आपको क्या पसंद है, तो मैंने बताया था कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी किताब आजकल पढ़ रहे हैं। तो मैंने हम्म, बोला मैं अमर्त्य सेन की आर्गुमेंटेटिव इंडियन पूछ रहा हूँ, हम्म, तो पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि फिर ये आर्गुमेंटेशन क्या है, भारत में इसका क्या ट्रेडिशन है। तो फिर मैंने उस पर बात की। फिर उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज एंग्लो इंडियन लिटरेचर, अच्छा। क्योंकि इंडिया के बारे में बात थी। तो उन्होंने एंग्लो इंडियन लिटरेचर, मेरा इंटरव्यू हुआ था कोलकाता में, ओके। एंड दे आल्सो आस्क्ड द क्वेश्चन दैट व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल, फोर्ट इंडिया विलियम में स्पेशली हुआ होगा आपका? बंगाल। फोर्ट विलियम में? हाँ, मेरा फोर्ट विलियम में ही हुआ था। हाँ हाँ। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर वो आपसे लिंग्विस्टिक्स के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हम्म, डिप्थोंग्स क्या होता है, मोनोफ्थोंग्स क्या हो सकता है, बाइलेबियल साउंड क्या है। तो ये छोटे छोटे सब क्वेश्चंस है, ये पूछे जी। जा सकते हैं, पूछे भी जाते हैं। और ड्रामा? हाँ बिल्कुल, ड्रामा तो, बिकॉज ड्रामा इज वन ऑफ द मेजर जॉनर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सो ड्रामा इज अ मस्ट आस्क क्वेश्चंस, एंड मेनी अ टाइम्स बिकॉज शेक्सपियर इज अ वेरी स्टॉक राइटर, एंड ही इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, सो शेक्सपियर विल बी देयर, मे बी देयर। एक्चुअली जब भी ड्रामा की बात आती है 11th 12th लेवल पे, तो जूलियस सीजर के बारे में बहुत ज्यादा, ब्रूटस वगैरह हाँ, के बारे जूलियस में सीजर पूछा के बारे जाता में। है। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन मैं सबको बोलूंगा कि वो जरूर तैयार करके जाएं। ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है कि आप इस इंटरव्यू के लिए क्या तैयार करके आए हैं। हम्म। वो चाहते हैं कि आप कंफर्टेबल हो, सो दे हाँ। जनरली आस्क दैट व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू। अब हम्म। वहां पे आपको सच में जो आपने पढ़ा है वो बताना होता है, हम्म। ताकि आप कंफर्टेबल रह सकते हैं। सो जनरली they generally push the ball in your own court, that हम्म। what have you prepared for this interview, हम्म। एंड देन द इंटरव्यू स्टार्ट्स फ्रॉम यू। तो एक ये क्वेश्चन भी जरूर तैयार कर लें कि आपने क्या तैयारी की है। हम्म। या वो ये भी पूछते हैं कि विच आर द फील्ड और विच आर द जॉनर्स और विच आर द टॉपिक्स यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन। तो तो कुल फिर ये भी मिलाकर आपके इनसाइट हो गया। कुल मिलाकर के आपने तो सारी चीजें कह ही दी कि आप ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, तो फिर छोड़े क्या? नहीं इन देखिए, जैसे इस कम समय में, क्योंकि आपने अब कहा दिया कि पूरा सिलेबस रिवाइज करो, ड्रामा पढ़ लो, प्रोज पढ़ नहीं, लो, मैंने पोएट्री रिवाइज पढ़ लो। करने की बात नहीं की। देखिए, वहां आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं देना है, हम्म, यही बात समझनी है। हाँ। क्योंकि मैंने बताया कि हर एक इंटरव्यू पैनल पे डिपेंड करता है। अच्छा। अब पैनल में किस तरह के लोग, मान लीजिए पैनल में कोई आता है जो 20th सेंचुरी पढ़ाता है, 20th सेंचुरी नॉवेल पढ़ाता है, क्योंकि मान लीजिए दिल्ली में आपका हो गया, तो वहां पे इस तरह से फैकल्टीज होती हैं। हम्म। मान लीजिए कोई विक्टोरियन एज का प्रोफेसर आ गया, प्रोफेसर ऑफ विक्टोरियन एज, तो हम्म। वो केवल चार्ल्स डिकेंस वगैरह के नॉवेल्स पे आपसे बात करने लगेगा। तो अच्छा। इस तरीके से अब चार्ल्स डिकेंस के बारे में आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपको उसको बता सके। तो ये सब मेरा मेजर राइटर्स मैंने पीजीटी के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो आपका लिटरेचर में जो मेजर राइटर्स हैं, मेजर इवेंट्स हैं, मेजर एज है, वो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं। और इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 दिन, क्योंकि सब लोग पढ़ के आए हुए हैं, कोई ऐसे तो रिटर्न निकाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा ये कहना है कि जैसे आ, कुछ खास राइटर्स के नाम आप सजेस्ट करना चाहेंगे अपनी तरफ से, कि इनको आप जरूर देख कर जाना, कि इस पर सवाल होने ही होने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल, जैसे मैं इसमें शेक्सपियर शुरू करूंगा। चौसर के बारे में बस एक सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश द लिटरेचर, ये फादर ऑफ सबको इंग्लिश पता लिटरेचर, होगा। हाँ। तो आप शेक्सपियर पढ़ लें, आप यूनिवर्सिटी बिट्स में मार्लो को पढ़ लें, हम्म। आप बेन जॉनसन को पढ़ लें, स्पेंसर वगैरह नहीं होंगे, सिडनी नहीं होंगे। फिर विक्टोरियन एज में आप डिकेंस को जरूर पढ़ लें, हम्म। डिकेंस को पढ़ लें, ठाकरे नहीं होंगे। आप एमिली, अमेरिकन लिटरेचर में वॉल्ट व्हिटमैन, एमिली डिकिंसन, एमिली डिकिंसन। हाँ एमिली एमिली डिकिंसन डिकिंसन। की सर वो पोयम बड़ी फेमस है ना, होप इज द फिगर, कैसे है? हाँ, फिगर, हाँ है, डेथ के ऊपर ज्यादा उनकी कविताएं हैं, इसलिए उसमें होप भी आता है। वेयर हाँ। देयर इज पेसिमिज्म, वेयर देयर इज डेथ, देयर विल बी होप। सो मोस्ट ऑफ अच्छा। हिज पोएट्री डील्स विद डेथ एंड होप। हाँ हाँ। तो पेंडुलम की तरह है वो, डेथ से होप, होप की डेथ की तरफ उनकी कविताएं जाती है। तो अमेरिकन लिटरेचर में टीएस एलियट को जरूर पढ़ें, क्योंकि टीएस एलियट इज पाइनियर ऑफ मॉडर्निज्म। तो ओके। टीएस एलियट को जरूर पढ़ें। हम्म। फिर आप इंडियन लिटरेचर में रविन्द्रनाथ टैगोर को जरूर पढ़ें। हम्म। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के अलावा तोरू दत्त वगैरह की छोटी छोटी कविताएं चूंकि स्कूल के सिलेबस में होती हैं, तो केजुरिना ट्री वगैरह आपको पता होनी चाहिए। हम्म। और अरविंदो हैं। तो अरविंदो से वैसे खास क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कोई स्कूल के सिलेबस में नहीं है, फिर भी मेजर इंडियन राइटर हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इंडियन राइटर में आजकल जो कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, उसमें अमिताभ घोष हो गए, विक्रम सेठ हो गई, अरुंधति रॉय हो गए। तो इन लोगों से क्वेश्चंस थोड़े थोड़े आपको इंट्रोडक्शन इनका आना चाहिए, इनकी बायोग्राफी आपको
पता होनी चाहिए। अरविंद अडिगा हो गए। तो उसके बाद अगर हम जैसे फेमिनिज्म की तरफ रुख करें, तो चूंकि अगर उसमें कोई लेडी होती है, तो चूंकि वो ज्यादातर फेमिनिज्म पे उनका अप्रोच हो सकता है, तो फेमिनिज्म से भी एक दो क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो फेमिनिज्म में जो बड़े राइटर्स हैं, सोवाल्टर हो गया, सिमोन दी बहुआ हो गई, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यू हैव टू स्किम थ्रू द सिलेबस, यू हैव टू स्कैन द लिटरेचर वेरी स्मार्टली। पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। इंग्लिश लिटरेचर बहुत वास्ट है, इट्स अ वेरी ह्यूज कैनवास, huge compendium, but you have to pick up all the major writers from all genres, and you have to be ready to at least introduce it very smartly in a very short space of time in a very efficient manner. तो अगर हम इस आपके साथ जो इंटरव्यू हुआ उसको समराइज करें, तो फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, लिटरेचर के सारे जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग राइटर रहे हैं, अलग अलग कालखंड में, जैसे देखिए आप अगर मेजर पढ़ते हैं तो उसमें आता है नॉर्मन पीरियड भी आएगा, एंग्लो नॉर्मन पीरियड आएगा, चौसर का युग भी आएगा, उसका यूनिवर्सिटी विट्स भी आएगा। तो वो सब नहीं पढ़ना है, वो उनके राइटर्स पढ़ना के है नाम पता होने चाहिए। जहां से इंग्लिश लिटरेचर का मेन स्ट्रीम शुरू होता है। और वो शुरू होता है मर्लो, यूनिवर्सिटी विट्स के सबसे लास्ट है, फिर शेक्सपियर से शुरू होता है। अच्छा। अब यहाँ से जो जो बड़े एज हैं उसके बड़े राइटर्स हैं, वो पढ़ना है। अच्छा। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और डेमो और के कुछ बड़े डेमो के लिए प्लेज हो गए, फेमस पोएट्री हो गई, फेमस पोयम हो गया, फेमस नॉवेल्स हो गए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो वो कुल मिला जुला के किसी भी जॉनर में आपको 10 से 15 मिलेंगे, और उनके बारे में 3 से 4 लाइन आपको पता होनी चाहिए मैक्सिमम, ज्यादा और नहीं। डेमो के लिए आप सजेस्ट कर रहे हैं कि पोएट्री ज्यादा अच्छा रहेगा? हाँ, पोएट्री मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पोएट्री चूज करें, उसमें ज्यादा बेहतर स्कोप होता है, आप आसानी से बहुत कुछ उसमें दिखा सकते हैं। और अगर सभी लोग पोएट्री ही पढ़ाने लगे और इंटरव्यू पैनल का मूड हो गया कि नहीं आप स्टोरी टेलिंग करिए या कोई अच्छी सी, नहीं, तो मैं क्या बताता हूँ कि मैंने आपको बताया कि 2 ऐसे पोएट्री अगर तैयार करें, 2 तैयार कीजिए, लेकिन आपके पास चूंकि 3 मेजर चीज होता है इंग्लिश में, एक होता है प्रोज, एक होती है पोएट्री, एक तीसरा होता है कंपोजिशन और ग्रामर। ग्रामर एंड कंपोजिशन एक साथ आता है। तो इन तीनों पे आपको एक एक लेसन प्लान आपका तैयार होना चाहिए कि अगर आपको पढ़ाने को बोला जाए तो इन तीनों से आप एक टॉपिक जरूर बहुत अच्छे से पढ़ा लें। ठीक है। और क्वेश्चंस तो कुछ भी हो सकता है कि आप वर्ब पढ़ा के दिखाइए। तो मैंने जैसे तैयारी की, मैं अपने तैयारी का स्ट्रेटजी आपसे थोड़ा साझा करूंगा, उससे मदद मिलेगी। मेरे पास एक डायरी भी है, जब मैंने तैयारी की थी मैंने क्या किया था कि वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वॉइस है, नरेशन है, इन सबके ऊपर 5-5, 10-10 लाइन मैंने तैयार किया था कि अगर मुझसे पढ़ाने को बोला गया या सीधे नहीं भी पढ़ाने को बोला गया, केवल पूछा गया, तो वो इतना एक स्मार्ट और एफिशिएंट आंसर हो कि फिर उसमें से कुछ बचे नहीं। तो ये जितने बड़े टॉपिक है, इसके साथ 2 चीज होगी, आप पढ़ा भी सकते हैं, आप आंसर भी दे सकते हैं। तो ये जितने बड़े टॉपिक्स है उसका आप एक मास्टर आंसर तैयार कीजिए, जिससे आप सब कुछ कर सकें और वो बहुत एफिशिएंट हो, 5 से 6 लाइन का। ये सबसे बेस्ट तरीका है। उसी तरीके से मैंने राइटर्स भी तैयार किए थे, उसी तरीके से मैंने एज भी तैयार किए थे, और वो मुश्किल से 30 से 40 पन्ना तक हुआ था, और उसमें से मैक्सिमम चीजें आपको ऑलरेडी पता होती। Even if you do not prepare, even if you do not gear up for the interview, still I believe that each and everyone is absolutely altogether prepared, since we have been students of English literature for past 3 or 5 years, even more than that. So when you have been a student of English literature for last 5 or 7 years, and you have been appearing in multiple exams in semester, then you are quite prepared. So you need to brush up it once again and be ready to face the interviewers. That's it, you are already prepared. So I do not say that they are not prepared and it's a very huge task to complete within a very short space of time. ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग इंग्लिश लिटरेचर वाले, उनकी तैयारी ऑलरेडी है, उन्होंने सब कुछ पढ़ाई कर रखी है, तब उन्होंने निकाला है। बिल्कुल सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमें। बहुत दिनों के बाद कहते कहते आप आखिरकार हमारे साथ जुड़े, और आपने विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित किया। जाते जाते इंग्लिश में कोई पोएट्री की 2 लाइन 4 लाइन जो मोटिवेशनल हो, जो उनको प्रेरित करे, जाते जाते सर मैं चाहूंगा कि आप साझा करें। I love W.B. Yeats because of his mysticism. And there is a very beautiful poem, The Second Coming by W.B. Yeats.
and the opening 3-4 lines are very beautiful, and that succinctly highlights the decadence and decay and decomposition in this modern world which has taken place. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, and center cannot hold. The mere anarchy is loosed upon the world. So this is a very beautiful that we are turning and turning in this whirlpool, in this spiral, and the falcon cannot hear the falconer. Here, falcon means the bird, falconer is the god. So the soul and super soul, the human and the deity. So there is a clear-cut separation, there is a divorce, and we both have become insular in our own world. That's why the god is not listening to us. Things fall apart, and that's why this entire world is at a disarray. This entire world is at sixes and sevens, and each and everything is scattered, and the center is not able to hold it. The mere anarchy is loosed upon the world, and that's why this world seems to be totally anarchic. So that's a very beautiful piece of poetry by W.B. Yeats. आपको इस तरह की लाइंस याद होनी चाहिए. मैं चाहूंगा कि आप सब थोड़ा तैयार करके जाएं. अचानक तो ये सब चीजें बहुत जगह ऐड हो जाती है. कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप तुरंत कोट कर देते हैं. So you need to have certain readily available lines with you. That helps you a lot. दोस्तों, ये इंग्लिश लिटरेचर का इंटरव्यू मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिनको इंग्लिश लिटरेचर उनको तो अच्छा लगा होगा, पर जिनको दूसरे सब्जेक्ट वाले अगर देख रहे हैं तो उनको केवल अच्छा लगा होगा, समझ में पता नहीं कुछ आया होगा या नहीं आया होगा. नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. अब मैंने इंटरव्यू के दौरान इवन हिंदी का भी इस्तेमाल किया था. उन्होंने पूछा था कि जैसे भारत में इंग्लिश पढ़ाना एक चैलेंज है, तो आप जैसे क्या कर सकते हैं. तो मैंने बोला कि इट इज कॉल्ड दैट लैंग्वेज इज अ बैरियर इन इटसेल्फ, but language is also a readily available tool. And since India is a polyphonic country, India is a country which entertains 22 constitutional languages and more than that. So this multilingualism is a readily available tool. So when I am teaching in Assam, so I can use Hindi, I can use Assami if I'm an Assami person. So language does not become barrier for India, either rather it becomes a tool. इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको उन बच्चों को पढ़ाना है जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी. आपके स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जिनके घर में हिंदी बोली जाती है, असमी, बंगाली बोली जाती है, आपको उन्हें इंग्लिश में पढ़ाना है. तो एक फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये सब भी क्वेश्चन आप जरूर तैयार करें. बिल्कुल, ये सब सिचुएशनल क्वेश्चन है जिसको आप पूछे जाते हैं, जिसको आप बताएंगे कि हम उनकी मातृभाषा को पहले सीखेंगे, उनकी मातृभाषा में बात करेंगे, फिर हम दूसरी फॉरेन लैंग्वेज को उनके साथ. नहीं, जैसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि इंग्लिश पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो ऐसे चैलेंजेस से आप कैसे निपटेंगे. वो ऐसे पूछेंगे कि सिंस you are going to be deployed, you are going to be part of Kendriya Vidyalaya Sangathan, which is widely spread in each nook and cranny of India, and that's why you have to grapple with students of different linguistic background. So how will you tackle with the challenges which you will face in your future? इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि केवी से क्वेश्चन जरूर होंगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल. केवी से क्वेश्चन होंगे कि आपको अलग अलग बैकग्राउंड में जाना है, अलग अलग तरह के बच्चों से डील करना है, जो कि पंजाब से सीधे ट्रांसफर होकर बंगाल चला आता है, बंगाल से केरला चला जाता है. तो केवी की खूबसूरती के भी बारे में कुछ बताइए कि केवी कैसे भारत को इंटीग्रेट करता है. अगर आपसे क्वेश्चन, आप क्यों केवी से जुड़ना चाहते हैं, तो ये माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया है. तो ये इन सब चीजों के बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू होगा. कि केवी के बारे में ये खूबसूरती है कि केवी very precisely and केवी symbolizes the hybridity, the diversity, the plurality of India in a very smart way, in a very efficient way. All the diversity of KVs are found, all the diversity of India is found in केंद्रीय विद्यालय. तो ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हैं. घूमने को मिलेगा, ये भी ऐड कीजिए कि you want to get acquainted with India. That's why KV gives you ample opportunity. केंद्रीय विद्यालय संगठन अनेकता में एकता का प्रतीक है, और इसमें हमें स्थायित्व भी मिलता है. स्थायित्व के साथ हमें गतिशीलता भी मिलती है. इसको आप जोड़ सकते हैं. अंग्रेजी में सर जोड़ देंगे, हिंदी में मैं जोड़ दिया हूं. तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका हमसे जुड़ने के लिए. आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने एक होलिस्टिक वे में इंग्लिश लिटरेचर के जो इंटरव्यू है पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश के लिए आपने साझा किया, और हम चाहेंगे कि आप हमसे यूं ही जुड़े रहें और विद्यार्थियों के जो भी सवाल होंगे आप उसका निदान करते रहें. बहुत शुक्रिया सर. बिल्कुल, अगर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं तो हम एक सेशन और कर सकते हैं. अगर किसी के कुछ डाउट्स हों
तो हाँ। कुछ दिन बाद हम एक और सेशन रख सकते हैं। तो इफ यू आर बिल्कुल हैविंग सर। एनी काइंड ऑफ क्वेरी, एनी क्वेश्चन, you may ask, you drop your question in comment box and we'll entertain it. Thank आपको you. शायद आपको पता होगा, हमारे साथ यूजर्स अभी जुड़े हैं, हमारे साथ देखने वाले अभी जूम पे वो देख भी रहे हैं। हमने आपका लिंक जो है साझा कर दिया था, और जो उनके सवाल होंगे वो हमें साझा करेंगे, फिर एक सेशन हम रख लेंगे। तब तक के लिए Thank you आपका so बहुत much. शुक्रिया, और दर्शकों जुड़े Thank रहिए you so हमारे much साथ। for being with me and giving me this opportunity to share my experiences with aspirants. थैंक यू सर।